بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، دجال کب اور کہاں پیدا ہوا؟ وہ رب کی بارگاہ سے کیوں ٹھکرایا گیا؟ دجال کس کی اولاد میں سے ہے اور اس کو کس نے قید کیا تھا؟ دجال کہاں پر قید ہے اور وہ کب آزاد ہوگا؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کی تلاش ہم میں سے ہر کسی کو رہتی ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں انہی ہم سوالات کے جوابات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ پیارے دوستو، آئیے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ دجال کی پہچان کیا ہوگی اور وہ دنیا میں کیسے تباہی مچائے گا۔ ناظرین گرامی، دجال چھوٹے قد کا، بدصورت اور ایک آنکھ سے اندھا ہوگا۔ اس کے دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے۔ اس کا جسم بالوں سے بھرا پڑا ہوگا۔ اس کے سر کے بال گھنگرالے ہوں گے۔ رنگ جو اس کا ہوگا سرخ یا گندمی ہوگا۔ پیارے دوستو، ناک بڑی اور طوطے کے چونچ جیسی ہوگی۔ اس کے ماتھے پر کفر لکھا صاف دکھائی دے گا، جو کہ مسلمان بآسانی سے پہچان سکے گا۔ وہ جب زمین پر نمودار ہوگا تو لوگوں کو بڑا پرہیزگار دکھائی دے گا، پر اندر سے کافروں کی طرح ظالم ہوگا۔ ناظرین گرامی، جب اس کے پیروکار کافی ہو جائیں گے تو وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ وہ بہت بڑی سواری پر سوار ہو کر گردش کرے گا، جس کی دونوں آنکھوں کے درمیانی لمبائی جو ہے وہ تقریباً 40 گز کے قریب ہوگی۔ وہ جھوٹا فریبی قسم کا انسان ہوگا۔ اس کے پاس بے تحاشا دولت خزانے ہوں گے۔ وہ بے شمار نہروں پر قابض ہوگا۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی شخص اس کی دولت خزانوں یا نہروں سے پانی نہیں پی سکے گا۔ پیارے دوستو، وہ اپنے آپ کو خدا کہے گا۔ جو قومیں اس کے پیروکار ہوں گی اس قوموں پر بارش برسائے گا تاکہ اناج اگ سکے اور وہ قومیں خوشحال ہو سکیں۔ جو قوم اس کو ٹھکرائے گی اس کو قتل کروانے کی کوشش کرے گا۔ وہ لوگوں کو کہے گا، اگر میں آپ کے باپ دادا کو زندہ کر دوں تو آپ مجھے خدا مانو گے؟ لوگ اس کی بات پر ہاں کہیں گے تو دجال کے شیطانی ساتھی ان کے آباء و اجداد کی شکلیں لے کر پیش ہوں گے۔ اس طرح کافی لوگ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ پیارے دوستو، اس طرح کی تسلیاں دے کر وہ لوگوں کو اپنا پیروکار بنانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ دجال کی رفتار بجلی سے بھی زیادہ تیز ہوگی۔ وہ دنیا کے ہر کونے میں گردش کرے گا۔ تمام دنیا کے کافر اور اسرائیلی اس کی حمایت کریں گے۔ وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی ہر جگہ کوشش کرے گا۔ محترم ناظرین، وہ ہر جگہ ذلیل و خوار ہی ہوگا۔ وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، پر اس کو وہاں مکہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے گا۔ آخر کار وہ مکہ میں ذلیل و خوار ہو کر مدینہ کی طرف رخ کرے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے۔ ہر دروازے پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا جو دجال کو مدینے میں گھسنے نہیں دے گا۔ وہ اپنی ہر کوشش کے باوجود ناکام ہوتا جائے گا۔ پیارے دوستو، ان دنوں مدینہ منورہ میں 3 بار زلزلہ آئے گا۔ بہت سارے لوگ مدینہ سے نکل کر باہر کی طرف جائیں گے۔ دجال ان سب کو ختم کر دے گا، پر ان میں سے ایک بزرگ بچ جائے گا۔ وہ دجال کے لشکر میں داخل ہو جائے گا۔ دجالی لوگوں کو ان کی باتوں پر شک ہوگا کہ ایک شخص ہمارے آقا کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو وہ ان کو پکڑ کر دجال کے دربار میں لے آئیں گے۔ جب اس بندے کو دجال کے پاس لے جایا جائے گا تو وہ دجال کو دیکھتے ہی شور شرابہ کرنا شروع کر دے گا، تو ہی وہ بدبخت دجال ہے جس کا ہمارے آقا دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا تھا۔ دجال یہ الفاظ سنتے ہی غصے سے لال پیلا ہو جائے گا۔ دجال کے حکم دینے پر اس شخص کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔
दज्जाल इसके जिस्म के टुकड़े देखकर अपने पैरोकारों से कहेगा, अगर मैं इसको दोबारा जिंदा कर दूं तो क्या तुम सब मुझे खुदा मान लोगे? सब यकजा होकर कहते हैं, हम तो पहले ही आपको खुदा मानते हैं, अगर इसको दोबारा जिंदा कर दोगे तो हमारा यकीन पुख्ता हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, जब वो उसको दोबारा जिंदा किया जाएगा तो हुक्म खुदावंदी से वो जिंदा होकर बोलेगा, अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तू ही दज्जाल है जो खुदा बनने का झूठा दावा कर रहा है। इस पर दज्जाल उसको फिर कत्ल करने की कोशिश करेगा, पर इस बार वो उसको ख़त्म करने में नाकाम हो जाएगा। वो शर्म के मारे उसको आग में फेंकने का हुक्म देगा। जब इसको आग में फेंका जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आग ठंडी हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, फिर वो शाम की तरफ रवाना होगा। वहाँ दमिश्क में हज़रत इमाम मेहदी भी आ चुके होंगे। दज्जाल दुनिया में 40 दिन रहेगा। जब हज़रत इमाम मेहदी को खबर हो गई कि दज्जाल भी इधर रुक कर रहा है, तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम एक बहुत बड़ी फ़ौज दज्जाल का मुकाबला करने के लिए तैयार करेंगे। मोहतरम नाज़रीन, दज्जाल के माली हालात और फ़ौज बहुत ही बेहतर होगी। वो अपनी दुनियावी ताकत की वजह से बहुत आगे होगा, पर लोगों को ये यकीन हो चुका होगा ये वही दज्जाल है जिसका जिक्र हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। इमाम मेहदी दज्जाल से लड़ने के लिए दमिश्क में मुसलमानों को इकट्ठा करेंगे। दमिश्क को हेड क्वार्टर के तौर पर जाना जाएगा। नाज़रीन गिरामी, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम एक नमाज की इमामत करवाने के लिए इमाम की जगह की तरफ जाएंगे। इस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। नमाज के बाद लोग इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हमरा दज्जाल का मुकाबला करने के लिए रवाना होंगे। प्यारे दोस्तों, जब वो दज्जाल के लश्कर के पास पहुंचेंगे तो दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर मुसलमानों के साथ मिलजुल कर रहने का फैसला करने का सोचेगा, पर इस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर दज्जाल को कत्ल कर देंगे। दज्जाल के कत्ल करने पर इर्द गिर्द की हर चीज़ बोल उठेगी। जहाँ जहाँ दज्जाली लश्कर के लोग छुपे होंगे। नाज़रीन गिरामी, इस बात का खुदा के अलावा किसी को नहीं पता कि दज्जाल कौन है, कहाँ से आया है। कुछ रिवायात इस तरह बयान की गई है कि दज्जाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में आया था। कुछ का कहना है कि ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जिन्नात इंसानों के मिलाप से पैदा हुआ है। इनके अबाओ अजदाद को तो वही ख़त्म कर दिया गया था और दज्जाल को वहाँ कैद खाने में बंद कर दिया था। नाज़रीन गिरामी, ये अभी वहाँ पर मौजूद है। इसके साथी शैतान इसको हर खबर से बाखबर रखते हैं। नाज़रीन गिरामी, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है कि एक दिन नमाज के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको रोक लिया और आप मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हो गए और फरमाया, मैंने तुम्हें इस बात के लिए जमा किया है कि तमीम दारी पहले निसरानी था, वो आया और मुसलमान हो गया और मुझसे एक किस्सा बयान करता है। मैं इससे खुश हुआ चाहता हूँ कि तुमसे बयान करूँ, जिससे तुमको मेरे इस बयान की तस्दीक हो जाएगी जो मैंने कभी दज्जाल के मुतल्लिक तुम्हारे सामने जिक्र किया था। वो कहता है कि एक बड़ी कश्ती में सवार हुआ जिस पर समुद्रों में सफ़र किया जाता है। उनके साथ कबीला लखमंग और जजाम के 30 आदमी थे। समुंदर का तूफ़ान एक माह तक इनका तमाशा करता रहा। आखिर मगरबी जानिब उनको एक जजीरा नज़र आया, जिसको देखकर वो बहुत मसरूर हुए और छोटी कश्तियों में बैठकर उस जजीरा पर उतर गए।
प्यारे दोस्तों, हमने वहाँ पर एक गिरजा घर देखा जिसमें से एक आदमी की आवाज़ आ रही थी। हम लपक कर गिरजे में पहुँचे तो हमने एक बहुत ही बड़ा कुव्हिकल शख्स देखा। इससे कबल हमने वैसा कोई शख्स नहीं देखा था। इसके हाथ गर्दन से मिलाकर और उसके पैर घुटनों से लेकर टखनों तक लोहे की जंजीरों से निहायत मजबूती से जकड़े हुए थे। हमने कहा, तेरा नास हो तो कौन है? वो बोला, पहले तुम बताओ तुम कौन लोग हो? हमने कहा, हम अरब के बाशिंदे हैं। उसने कहा, ये बताओ कि बीसान शाम में एक बस्ती का नाम है कि खजूरों में फल आता है या नहीं? हमने कहा, हाँ आता है। उसने कहा, वो वक्त करीब है जब इसमें फल ना आए। फिर इसने पूछा, अच्छा बहरिया तिब्रिया के मुतल्लिक बताओ, इसमें पानी है या नहीं? हमने कहा, बहुत है। इसने कहा, वो ज़माना करीब है जबकि इसमें पानी ना रहेगा। प्यारे दोस्तों, फिर उसने पूछा, ज़ुगर शाम में एक बस्ती का नाम है कि चश्मे के मुतल्लिक बताओ कि इसमें पानी है या नहीं, और उस बस्ती वाले अपने खेतों को इसका पानी देते हैं या नहीं? हमने कहा, इसमें भी पानी बहुत है और बस्ती वाले इसके पानी से अपने खेतों को सैराब करते हैं। फिर इसने कहा, अच्छा नबीउल अमीन का कुछ हाल सुनाओ। हमने कहा, वो मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले आए हैं। इसने पूछा, क्या अरब के लोगों ने उनके साथ जंग की है? हमने कहा, हाँ। उसने पूछा, अच्छा फिर क्या नतीजा रहा? हमने बताया कि वो अपने गिरद निवाह पर तो गालिब आ चुके हैं और लोग उनकी इताअत कबूल कर चुके हैं। उसने कहा, सुन लो, उनके हक में यही बेहतर था कि उनकी इताअत कर ले। नबी आखिर ज़बान की बहस की खबर सुनकर उसने मारे खुशी के छलांग लगाई। और अब मैं तुमको अपने मुतल्लिक बताता हूँ, मैं मसीह दज्जाल हूँ और वो वक्त करीब है जब मुझको यहाँ से बाहर निकलने की इजाज़त मिल जाएगी। इस रिवायात की रावी फातिमा बिन्त कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ के इशारे करके बताया, देखो वो बहर शाम मशरिक की जानिब है। इसी तरह फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन दज्जाल का जिक्र किया। मैंने पूछा, वो कब निकलेगा? हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब इमारतें मजबूत और मस्तकम बनाई जाने लगे और औरतें गैर शोहरों के लिए जीनत करने लगे। मैंने कहा, जब ऐसा हो जाए तो फिर कब निकलेगा? फरमाया, जब तिजारत करने वाले झूठ बोलने लगे और लोग ज़िना वगैरह करने लगे। मैंने पूछा, जब ऐसा होगा तो कब निकलेगा? इरशाद फरमाया, जब मेरी उम्मत नबीज़ के बजाय शराब को हलाल समझने लगे और सूद की खरीद फरोख्त के बदले और ज़िना को निकाह के बदले हलाल समझने लगे। इस वक्त दज्जाल का खरूज होगा। तो प्यारे दोस्तों, इमाम ज़रकानी लिखते हैं कि दज्जाल एक ऐसा फितना है कि जिसे अल्लाह पाक ने तब पैदा फरमा दिया था कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाले गए थे। ये भी बिना माँ बाप के पैदा किया गया है। नाज़रीन गिरामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरत कैफ की इब्तदाई 10 आयात हिफ्ज़ करके उनका विर्द किया तो वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दज्जाल जैसे एक बुरे फितने से दूर रखे। और प्यारे दोस्तों, ये थी एक क़यामत की चंद एक बहुत बड़ी निशानियों में से एक निशानी जिसका जिक्र हमने आपके सामने किया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।